Okay, good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Good afternoon. Today we will learn the chart of 7 layers of suppression and progression of disease. Chapter number 4, page number 31. Okay, सबके पास बुक्स है सब theory of suppression के? Yes, sir. Okay, Good afternoon, sir. good afternoon. So in chapter 4, it is a big chapter because 7 layers sir ने यहाँ describe किए according to embryology, according to the cells, types of cells, layer, tissues, then miasm, and the disease according to miasm. तो बहुत अच्छी तरह से सर ने इसे डिस्क्राइब किया है. सर ने कल हमने पढ़ा कि सर ने कितने साल तक पढ़ाई की, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद सर ने इसे इस किताब के रूप में हमारे सामने रखा. So embryological basis of 7 layers of suppression. Human being has essentially 7 layers of suppression denoted in the chart in order to importance from down upward based on the embryological origin. Yes. So down upward, that means the base of the chart, that is the first layer, ectoderm, and ends into the 7th layer, that is the cell. So let us see what gives them their importance. Why one is more important than the other. Human egg, like that of any chordate egg, differentiated into various organs and systems. Before it differentiated into the various organs and the system, it gives rise to 3 main germinal layers. And that 3 main germinal layers are ectoderm, endoderm, and mesoderm. So in chordata, first layer was formed, that is the ectoderm. Afterward, mesoderm and the endoderm lies between the ectoderm and mesoderm. So the fourth is a specialized ectoderm called neuroectoderm layer. The fourth layer, that is the combination of 2, ectoderm and mesoderm. Ectodermal cell goes into the neuroderm and form the neuroectoderm. Now what is ectoderm? Ectoderm gives rise to all the organs which are in connection or exposed to the external environment. Yes. It gives rise to the protection of the internal organs. It forms the outer surface of a tube-shaped man. Yes. तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाली भी लेयर है ectoderm layer, because it gives protection all over the body, protection to internal organs. This is of least important and hence form our first layer. सबसे बड़ी ectoderm है लेकिन सबसे least important है, because it is outermost. And the endoderm forms the respiratory tube lining. Yes. मोंटी बोलो नहीं तब तक चलता रहता है बेटा, देखते हो बस.
So endoderm forms the respiratory tube lining, the gastrointestinal tube lining, and urinary tract tube lining. Only linings, that means the superficial part of the organs. Yes. This is also in connection or exposed to external environment, but internally it is as if inside of inner tube of a double tube man. Yes, this is the inner tube. Outer tube is ectoderm and inner tube is endoderm. This is second last in the important and forms our second layer. तो जितने भी लाइनिंग्स है, जैसे कि स्टमक लाइनिंग, थ्रोट लाइनिंग, लैरिंग्स लाइनिंग, टॉन्सिल्स लाइनिंग, लाइक दिस. तो लाइनिंग्स ऊपर का जो सरफेस होता है इनका, वो आता है एंडोडर्म में. And the mesoderm gives rise to the viscera or the parenchyma of viscera, that is the lungs, heart, kidneys. These are organs arising out of mesothelium of mesoderm. Yes, mesothelium of mesoderm. Then the third layer, that is the mesoderm. इसके दो पार्ट्स हैं, एक mesothelium of mesoderm and दूसरा connective tissue. The connective tissue, apparently there exists no connection between endoderm derivatives and mesoderm derivatives. Yes, this connection is established by tissues arising out of mesenchyme. So this is the major two parts of third layer, mesoderm, mesothelium of mesoderm and mesenchyme of mesoderm. These tissues are called connective tissue. So mesenchyme gives rise to connective tissue and mesothelium gives rise to organs. Connective tissue includes blood, lymph, bone, cartilages, muscle, dermis, and fascia, and coverings of organs are formed from the connective tissue. That is the mesenchyme of mesoderm. Mesoderm के major two parts है, एक mesothelium of mesoderm and second is mesenchyme of mesoderm. Mesenchyme gives rise to connective tissue and organs like blood, lymph, bones, cartilage, muscle, dermis, fascia, and coverings of the organs. And mesothelium of mesoderm gives rise to organs. So this forms the layer between ectoderm and endoderm and the visceral mesoderm. Yes. The fifth layer, that is the neuroendocrine glands, are externally the body derived from ectoderm, endoderm, or even mesoderm, but the functional part of that is secretory cell. Secretory cells are of either neural crest in origin or neuroectodermal origin. So this is the fifth layer, neuroendocrine glands. Some of these cells are found scattered in various tissues of the body like lungs, intestines, etc., secreting the neurotransmitters. Thus, all these which perform the function of secretory or secreting neurotransmitters or hormones, whether in endodermal glands or elsewhere, are grouped together in एपीयूडी सिस्टम. So जो fifth layer है endocrine, इसके two parts है, एक एपीयूडी सिस्टम और दूसरा हार्मोन्स. तो एक पार्ट आता ग्लैंड्स का और दूसरा पार्ट आता उसके सिक्रीशन का. That is APUD system, amine precursor uptake, decarboxylate system. And the sixth layer, that is the nervous system, whether it is
The central or peripheral and the brain are derived from the neuroectoderm, which is a specialized ectoderm. The development of an embryo is just like a development of a city. Yes. जैसे सिटी का डेवलपमेंट होता है वैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, इनसाइड आउट, अबव डाउनवर्ड, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, जो हमने कल पढ़ा ही. So the city grows in all directions. During the growth, building material and maintaining materials is brought from most important marketplace, that is the center of the body, or source, to the less or lesser important, that is the peripheral places. As the embryo grows, the nutrition is supplied. First form organ which act is the chief source, that is the more important to less important, center to periphery, inside out, like this. Yes. The first form is the procaudal plate. Embryo का development कैसे होता है? First to form the procaudal plate, which represent head part. Yes. In QR axis, head or brain or upper part is more important than other part, क्योंकि head first form होता है इसलिए more important part, which are formed later, are less important. The cephalocaudal axis form denotes the higher to lower level of the importance. Yes, इसीलिए नेचर ने भी देखो हेड को मोर इंपॉर्टेंस दिया है और फीट को लेस इंपॉर्टेंट. द स्प्रेड ऑफ मेसोडर्म paraxially form inside out and from dorsal to ventral region also denotes the importance in that direction. Yes, again it is more important. Spread of mesoderm paraxially, yes, फ्रॉम इनसाइड आउट. जब भी क्योर होगा इनसाइड आउट होगा. एंड फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल रीजन. डॉर्सल रीजन पहले क्योर होनी चाहिए, देन वेंट्रल. व्हाई? जैसे कि एब्डोमेन पे अल्सर है और बैक पे भी अल्सर है, तो कौन सा अल्सर सबसे पहले जाएगा? तो बैक का, बिकॉज इट इज डॉर्सोवेंट्रल. क्योर इसी तरह से होगा क्योंकि डॉर्सल साइड पहले फॉर्म हुई, देन वेंट्रल. And dorsal gives rise to rest when we sleeping on the dorsal region back, it gives us rest. इसीलिए जो रेस्ट वाला पोर्शन होता है वो सबसे पहले क्योर होना चाहिए. तो जो बैक पे अल्सर होगा वो सबसे पहले क्योर होगा, देन द फ्रंटल साइड, that is the ventral side. Yes. So all these indicates four direction of cure, more important to less important, more above downward, inside out, and central to periphery. तो ये फोर डायरेक्शन यहां सर ने अकॉर्डिंग टू एम्ब्रोलॉजी एक्सप्लेन किए कि क्यों ये फोर डायरेक्शन से ही क्योर होना चाहिए. बिकॉज ये फोर डायरेक्शन के ऑर्गन्स जो मोर इंपॉर्टेंस में आएंगे, जो पहले फॉर्म हुए उसके बाद लेटर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. तो जो पहले फॉर्म होगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो लेटर फॉर्म होगा दैट इज द लेस इंपॉर्टेंट. पहले सेंटर से न्यूट्रिशन जाएगा इसलिए सेंटर टू पेरिफेरी. हेड फॉर्म होता है इसलिए अबव डाउनवर्ड. Ectoderm is least important when it forms skin and most important when it forms brain and neural tissue. The ectoderm and the mesoderm gives rise to organs which are in between. Yes, ectoderm और endoderm के बीच में mesoderm होता है. How beautifully the circle becomes complete. Ectoderm, endoderm, mesoderm and neuroectoderm, that is complete the circle.
इसीलिए अगर न्यूरोएक्टोडर्म का कोई डिजीज है, क्योर होगा, डायरेक्ट स्किन पे आता है, इरप्शंस या फिर एक्सटराइजेशन, तो इट इज गुड साइन। दैट इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से एंडोडर्म में गया, एंडोडर्म से मेसोडर्म में गया, मेसोडर्म से न्यूरोडर्म में गया, एंड न्यूरोडर्म से डायरेक्ट एक्टोडर्म में आया। दिस इज कंप्लीटेड द सर्कल। He shows a complete connection between all tissues from ectoderm back to endoderm. The word is round and so the egg is round. Yes. और इसी तरह से क्योर होता है, जो जहां से जाएगा वही आएगा। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। खुद को अनम्यूट कीजिए और पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। एंट्राइज कीजिए, मैं आपको प्रॉम्प्ट भेजूंगा, अनम्यूट कर। तो ये 4 लेयर सबके समझ में आ गए। नाउ we'll proceed. The word is round and so the egg. The least important skin, epidermis, arising from ectoderm is at the bottom of the chart, followed by more and more important level up. Yes. So ectoderm, it is superficial layer, basic layer, bottom of the chart. That's why it is less important. और जो इसके ऊपर फॉर्म हो गए, that is more important. Every layer has also sub levels of importance which are not shown in this chart. ये सब लेवल्स क्या है? ये सब लेवल्स है, जैसे कि जैसे हम एंटर करते हैं एंडोडर्म में, तो एंडोडर्म कहां से स्टार्ट होगा? तो लिप्स से, टंग, माउथ, palate, larynx, pharynx, lungs. These are the sub-levels. Then GIT, then urinary tract, then cardiovascular system, like this. So both are in the same level, but transport of disease from which are not shown. So, for example, respiratory tract and gastrointestinal tract both are in the same level. Yes. But transfer of disease from respiratory to GIT is suppression. Respiratory to GIT is suppression. क्योंकि GIT के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनती है, इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लेस इंपॉर्टेंट है देन GIT. Emotional changes are present in all layers as concomitant, like emotions, attitude, behavior, anxieties, delusions, etc. Arise from the secretions in the limbic system. Yes. तो ये जिससे ये इमोशंस आते हैं ना, that is the angels of our body. जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एट्रोपिन, एडोनेसिन, सेरोटोनिन, इससे इमोशंस आते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रेटेड होते हैं, जिसका बॉडी को कोई नीड नहीं होता, ये एक्सेस में होते हैं, और एक्सेस ऑलवेज एक्सेस क्रिएट द डिजीज. ये जैसे ही बॉडी में एक सीक्रेट होंगे, बॉडी डजंट नीड ऑफ दिस, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में नॉर्मल रेंज में डिपॉजिटेड है, और ये जो एक्सेस हुआ, ये इट क्रिएट्स द डिजीज.
इसीलिए हम एलिमेंट्स फ्रॉम लेते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम फियर. So emotional changes are present in all layers. तो कौन से भी लेयर का डिजीज इस न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हो सकता है. As concomitant emotions, attitudes, behavior, anxieties, worries, delusions arise from the secretion in the limbic system, which varies with varying biochemical reactions at the humoral level and neuroendocrinal level. Neurotransmitters like serotonin, norepinephrine, ACTH, encephalin, endorphin can be secreted or depressed at all levels in different proportions in different individual and help us in individualization. और इसी वजह से इंडिविजुअलाइजेशन ये टर्म होम्योपैथी में है, क्योंकि हर किसी में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अकॉर्डिंग टू रिएक्शन सीक्रेट होंगे, and that will cause the disease. That's why we need reactions. And the fifth, that is the mind, say. The seventh layer of suppression, mind is not actually the emotion of love, fear, anxiety, worry, illusion, delusions, and hallucinations. Affection of mind means affection of basic cell, that is the genes, genetic code. Every cell has genetic code which has two parts. 7 layer में सर ने जीन्स दिया है, that is the same. तो जीन्स के 2 पार्ट्स है, एक बेसिक सेल कोड एंड दूसरा इनहेरिटेड कोड. Basic cell code common to all living cells, whether plant, animal, or man. It includes functions and properties which are common to all living beings. तो जो बेसिक सेल कोड होता है, it is common to all human beings. जो भी all human beings के जितने भी characteristics होंगे, that are the basic characteristics, that is common. Functions of respiration, ingestion, digestion, excretion, defense, reproduction, these are all common. That's why these are the basic code. और जो inherited code होते हैं, that is the uncommon things, and we need the inherited codes. Basic things के लिए हमारे होम्योपैथी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जितना इंपॉर्टेंस इनहेरिटेड कोड को दिया है. सो इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड स्पेसीज, दिस इंक्लूड्स द नेचर, स्ट्रक्चर, टॉलरेंस, susceptibilities, etc. And we want the nature, structure, tolerances, susceptibilities, sensations, etc., which differs from individual to individual, that is called the individualization, and forms the species of the species. Yes. That's why inherited code is more important for us. We need the inherited characteristics, and that is included in the 7th layer. Say that is the genes. So this is the basic description of the chart of suppression. Now, according to the layer, the explanation here given is layer by layer. फर्स्ट लेयर में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, किस तरह से फॉर्म होता है, कौन से सेल से फॉर्म होता है, कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उसके बाद कौन से डिजीजेस आएंगे एंड कौन से माइजम के कौन से डिजीजेस होंगे. This is explanation of the chart of 7 layers of suppression.
It is noteworthy that disease exhibits symptoms in tissues and organs where the immunity is impaired. Yes, हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है कि डिजीज वहीं स्टार्ट होगा जहां की इम्यूनिटी इंपेयर्ड हुई है. जिस ऑर्गन की इम्यूनिटी इंपेयर्ड हुई वहां डिजीज स्टार्ट होगा. A person having impairment of immunity in respiratory tract shall show a tendency to cough, cold, and catarrh frequently. If this impairment of immunity shifts to GIT, he shall suffer from diarrhea, dysentery frequently. Yes. तो जिस सिस्टम की, जिस ऑर्गन की इम्यूनिटी इंपेयर्ड हो गई, और इम्यूनिटी इंपेयर्ड करने के लिए अभी हमने पढ़ा which factor is responsible, that is the neurotransmitters. This impaired immunity at local cellular and the tissue level produces toxins which are transported higher and higher through the 7 layers by what is called as active transport. And trans-cell transport, and it requires energy. It gives rise to suppression. This active transport through cell is done with the help of intrinsic and extrinsic proteins in the cell wall. Active transport as a rule is against a gradient, that is the gravitational force, and hence requires energy. It acts against the nature, that is the gravitational force. This energy is taken from the ATP in mitochondria of every cell. Thus, every time a disease is suppressed, the toxins are pushed or shipped upward, that is towards more important organs or systems. The store energy ATP, which was supposed to be used for daily natural activities of the cell, is used up. Yes. This gives rise to weakness. This proves the fact that any treatment which is accompanied by weakness is leading to suppression. तो आप देखो, कोई भी सिम्टम जब डिसअपियर होता है और वो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स और सिस्टम में आता है, तो वो लेस इम्पोर्टेंट में से मोर इम्पोर्टेंट में कैसे गया, वो शिफ्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, और वो ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी बॉडी की यूज्ड हो गई, उसकी वजह से पेशेंट फील्स डलनेस एंड वीकनेस. दिस इज कॉल्ड द सपरेशन. Any treatment which produces sense of well-being, that means toxins or toxic material shifts from more important to less important, and it doesn't require energy, and that transport is called as the passive transport. It flows according to the nature, that is the gravitational. By pushing the toxins downward by enhancing already existing nutritive nutritive gradients is proceeding towards cure. इसीलिए सर ने चार्ट में दिया है कि जो भी डिजीज डिसेंडिंग होगा, दैट इज द टुवर्ड्स द क्योर, और जो असेंडिंग होगा, दैट इज टुवर्ड्स द सप्रेशन. Hence, a partially similar drug shall remove symptoms but produce weakness, but only a right constitutional simillimum shall remove disease and remove weakness, giving rise a desire and stamina to work. Desire and stamina to work and perform daily chores are the most important parameters in any kind of homeopathic treatment. जो पार्शियल सिमिलिमम ड्रग्स होंगे, वो ऑलवेज एक तो सप्रेशन देंगे,
और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग होंगे वो क्योर भी दे सकते हैं एंड पैलिएशन भी दे सकते हैं इफ यूज इन रॉन्ग पोटेंसी। जब भी आफ्टर मेडिसिन स्टेमिना इंक्रीज होता है, डिजायर फॉर टू वर्क, वहां पे पेशेंट फील्स, then it is the very good indication for our right selection of remedy. That's why general parameters are the important criteria of our follow-ups. Follow-ups में फर्स्ट फॉलोअप में सबसे पहले आपको जनरल पैरामीटर्स ही देखना है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ 7 layers of suppression. Now elaboration of the chart of 7 layers of suppression. The chart of 7 layers of suppression is the compass. हमने कल ही देखा था. It is compass which when applied can distinguish a right simillimum from a wrong simillimum. It is the one of the best means of ascertaining whether a homeopath's prescription is curative or suppurative. So ये जो 7 लेयर चार्ट है, इसकी प्रिंट बना के इसको लैमिनेशन करके हमेशा टेबल पे रखना। हर पेशेंट में ये काम आता है। हर पेशेंट में देखना होता है कि डिजीज पहले सिम्टम कौन से थे और अब कौन से सिम्टम्स आए, तो वो अब जो सिम्टम्स आए वो कौन से लेयर के हैं, उससे मोर इंपॉर्टेंट लेयर में क्या है कि लेस इंपॉर्टेंट लेयर में क्या है। ये जब हम देखते हैं तो हमें ये एक गाइडलाइन देता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज सप्रेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी डिजीज इज impaired immunity in the ectoderm. Hahnemann said the origin of all diseases is sora. Yes. तो स्टार्टिंग स्किन से ही होगी, स्टार्टिंग ऑलवेज सोरा से ही होगी। When immunity is impaired at the ectodermal level, the disease is said to be in its first stage. So ectoderm कब अफेक्ट होती है, कब ectoderm के डिजीज स्टार्ट होते हैं, तो आफ्टर बर्थ। So it is relatively the outermost and the least important organ of the body. That is the ectoderm skin. When the immunity at the cellular level there is a low, or the fighting powers against the bacteria and viruses go down. This gives opportunity to these bacteria to attack the cells and tissues that reside here. It produces toxins or toxic product, causes inflammation of the skin, and these ectoderm derivatives are now said to be dysfunctional and hence diseased. So the immunity of the skin becomes low or disturbed. After that, disease starts. That bacteria, viruses gives the chance to develop, and afterward disease start or settle there. And which types of diseases are found in the ectodermal level? The ectodermal derivatives where the diseases may begin are, for example, skin, the outermost
organ gives rise to eczema, fungal infections, bacterial infections, maybe streptococcal or staphylococcal, non-specific boils, etc. Anterior epithelium of cornea, anterior epithelium of conjunctiva, and epithelium of iris. So upper part, जितने भी organs ectoderm में आते हैं उनका superficial और upper part, lens of eyes gives rise to cataract at the first degree, at the first stage disease. Hairs only above the surface. जो roots होते हैं that goes into dermis layer, third layer. So hairs, nails, enamel of teeth, only epithelium or linings of these organs. Then external auditory canal, tympanic membrane, lower part of anal canal, terminal part of male urethra, outer part of vagina, lips, cheeks, gums, outer part of tonsils. These are the derivatives. These are the organs comes in the first layer epidermis. It is to be remembered here that psoriasis and lichen planus is not the diseases of first layer, though it appears on the skin. It goes into the fourth layer or third layer. So the psoriasis and the lichen planus goes into seventh layer, and psoriasis it is dermis, third layer. And leukoderma again, though it is the disease of skin, but it comes into the fifth layer, epidermocystis. These are the first stage ectodermal diseases. So this is the first layer ectoderm. And the diseases or symptoms which occur in the first stage are different in the different miasmatic constitutions, like psoric, psychotic, and syphilitic. Psoric individual gives rise to boils, rash, acne, eczema, dermatitis, conjunctivitis, aphtha, and otitis externa. These are psoric diseases, appear on the skin and the derivatives or organs of the first layer. Psychotic always gives rise to psychotic disease like growth, wart, cyst, tinea, ringworm. देखो, boils and eczema, dermatitis comes in the psora, and the ringworm, tinea, comes in psychosis. Blepharitis, thrush, otitis interna. Interna goes into psychosis because वहाँ pus formation होता है, that's why it goes into the psychosis. Syphilitic individual. So always destruction. Syphilitic individual gives destructive process, destruction, cuts, wounds, ulcers, uneven or jagged ulcers, cracks, corneal ulcers, denuded ulcers, denuded mucous membrane, yes, eardrum rupture. So these are the syphilitic diseases of ectodermal origin or ectoderm layer. तो हमने
एक्टोडर्म लेयर में ऑर्गन्स देखे, कौन से ऑर्गन्स उसमें आते हैं, ऑर्गन्स का कौन सा पार्ट आता है, दैट इज सुपरफिशियल पार्ट ओनली। एंड डिजीजेस देखे, कौन से डिजीजेस फर्स्ट लेयर में होते हैं, डिजीजेस अकॉर्डिंग टू मायाजम देखा कि कौन से मायाजम की कौन से डिजीजेस होंगे। एंड नाउ द एज, in which age the first layer, that is the ectoderm, affect, mostly affect, that is the age, and age is the first layer disease का age है infantile age, children's mostly suffer predominantly from diseases of ectoderm। सर ने लास्ट में यहां एग्जाम्पल दिया है कि सपोज फर्स्ट लेयर डिजीज सप्रेस होता है, डिसअपियर होता है, तो क्या होगा, एंड हाउ द फर्स्ट लेयर डिजीजेस स्टार्ट। A patient with the skin eruption or cracks with burning better by warm, characteristic sticky discharge with scabs covering it may be treated by different homeopaths differently. Only differently, one will prescribe graphitis because of sticky discharge, the other will prescribe mesothelium because of scabs, and the third one gives rise to sulfur because the patient has sora, that is the burning. A fourth will differ from all these and gives rise to arsenic because of pain or burning better by hot. Hence, arsenic will cure. Obviously, all these prescriber vouch for their prescription and guide and gives guarantee the result as per their years of experience. Certainly, the follow-up after a month is encouraging. With the skin eruption receding and finally residual eruption still remaining, the patient is told to increase the doses from 3 to 4 times a day, following which the prescriber hikes up the potency to 1 m, 10 m, 50 m, cm, or change to frequent repetition of 50 cml potency. Lo and behold, the patient, after all these hammerings, is bound to be free of the initial complaint, bearing perhaps a few symptoms which have cropped up like indolence, sleep disturbed by fearful dreams, and bowels not clear. देखो, फर्स्ट लेयर डिजीज था, सिंपल स्किन डिजीज था, सुपरफिशियल डिजीज था, नाउ सप्रेसेस एंड goes into the deep. The patient is extremely happy and his homeopath has got rid of his chronic ailment and which his allopathic counterpart was not able to achieve. The homeopath is also happy at his success, and more so that his way of practice is result oriented. But it is not a result. It is sure short sign of suppression. A few days later, the same homeopath, when confronted by the same patient, now having full faith in him, blames pollution for his rhinitis, dust allergy, air allergy, whole grain allergy. So, and promises to cure him as he did his skin. His skin eruptions अपनी दवा से गए, वैसे ही राइनाइटिस जाएगा, लेकिन कितना इजीली ये
हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जो गया वो गया कहाँ गया, तो वो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से आया है, एंड दैट इज कॉल्ड द सप्रेशन. So here the doctor prescribed rhinitis के लिए L-M-Zipa, Euprasia, Aurum trip or Solanum lycopus is repeated 3 to 4 times a day for a number of days to find the patient again free of sneezing and coryza. A few days later, the patient comes with cough and super added breathlessness. Now the symptoms of bronchial asthma start. The simple rash goes into the lungs. Now the patient is consoled by the homeopath as being victim of hereditary. This is the root of escape. कि हम लोग कभी ब्लेम हमारे ऊपर लेते ही है ना, इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि आपके घर में अस्थमा था इसलिए आपको स्टार्ट होगा, लेकिन तभी भी समझ में नहीं आता. सो अस्थमा which is father or mother out ought to have suffered, or else your parents could have suffered from TB, if not asthma, is the vain argument put forth by the homeopath. Some patients, especially children, after treatment for skin eruptions may develop acute spasmodic pain in the abdomen. That means the skin eruptions just goes into the GIT system instead of respiratory tract problem. Yes, एक तो respiratory का होगा या फिर GIT, या फिर respiratory होने के बाद patient goes into GIT. The disease has now traveled from skin, ectoderm, to the endoderm, that is the respiratory tract or GIT tract. And this is the short case of suppression. The first layer suppressed disease. Suppression of first layer, skin to endoderm, second layer. And ये ओनली सोरा टू सोरा ही नहीं होगा, ये सोरा टू साइकोसिस भी हो सकता है, सोरा टू सिफिलिस भी हो सकता है. सोरिक इरप्शंस जाके सिफिलिटिक अमीबियासिस भी स्टार्ट हो सकता है. यस, तो इस तरह से सप्रेशन होता है लेयर बाय लेयर. Today we have seen the first layer suppression. First layer कैसे फॉर्म हुई, फर्स्ट लेयर में कैसे कैसे कौन से डेरिवेटिव्स आते हैं, देन डेरिवेटिव्स के बाद उनके जो डिजीजेस है वो डिजीजेस एंड अकॉर्डिंग टू मायाजम किस टाइप के डिजीज. तो आज हमने फर्स्ट लेयर देखा, कल हम सेकंड लेयर सप्रेशन देखेंगे. तो यहाँ तक सबको समझ में आया. अभी आप लोग खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं. किसी को कोई डिफिकल्टी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं. और उसके बाद हम लेंगे आज का टिप्स ऑफ हैनेमन और हिंट्स ऑफ हैनेमन. आप लोग अनम्यूट नहीं हो रहे हैं. यस, सुमा विनोद बोलिए. गुड इवनिंग सर. Yeah. थैंक यू सो मच कि आप इतना पेशेंटली सबको सिखा रहे हैं एंड एकदम रेगुलरली. सर एक केस के बारे में पूछना था. नेजल जी. पॉलिप की केस है, 20 इयर्स से है. उन्होंने 2 बार ऑपरेट किया है और 1.5-2 इयर्स में रिपेट आ गया है वो.
नेजल पॉलिप। वो पेशेंट को बीच में पॉलीमायोसाइटिस भी हो चुका था, लेकिन उससे भी रिकवर हुए। तो एक्चुअली उस दिन जब आए थे मेरे पास तो एक्यूट कंडीशन था, फीवर वगैरह, कोल्ड वगैरह था, तो मैंने आर्सेनिक 200 दिया था। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ तो इस वजह से वो उस दिन 2 और नेक्स्ट डे भी 2 आर्सेनिक एल्प का 200 का डोज ले चुके। बहुत ज्यादा एग्रीवेशन हुआ, लेकिन थर्ड डे से उनको काफी बेटर हो गए वो, यानी इतना कि उनको ब्रीदिंग की तकलीफ कम हो गई, सेंस ऑफ स्मेल आ गया। वो खुद ही मिरेकल है मैडम, एकदम वो बहुत खुश हो गए। 1.5 मंथ तक वो बहुत अच्छे रहे, एकदम एपिटाइट बढ़ गया, उनका वेट बढ़ा, जो कम हो गया था सब, सभी अच्छा था। लेकिन फिर 1.5 मंथ के बाद वापस धीरे धीरे नेजल ब्लॉक है ऐसे सब शुरू हो गया। तो अब मैं 200 का बीच में एक और डोज दी, लेकिन फिर इतना कुछ रिलीफ हुआ नहीं, कम ज्यादा ऐसे चालू है, मेजर कुछ रिलीफ नहीं। तो शुड आई चेंज द मेडिसिन, शुड आई Yes, चेंज टू एलएम पोटेंसी, क्या करूं? देखो आर्सेनिक जो मेडिसिन है ना वो एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है। जी जी जैसे हनीमन ने कहा है कि एक्यूट में उसने, क्योंकि एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज था वो, जो भी सिम्टम्स लेके आया, तो वो जी जी एक्यूट में आपने एक्यूट रेमेडी दी, एक्यूट एग्जासर्बेशन चले गया, नाउ इट कम्स ऑन द क्रॉनिक डिजीज, ओके right? Now हाँ you have to change the medicine. ओके So please take the case in detail and afterward take the proper rubrics and select the proper remedy. ओके And yes, जो रेमेडी आएंगी मे बी वो उसके आर्सेनिक के रिलेशनशिप में हो सकती है, हो इसलिए सकते हैं। यस आपको दूसरी रेमेडी देनी पड़ेंगी, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हाँ सर। फॉर हिज क्रॉनिक डिजीज। सर पॉलीमायोसाइटिस जो था वो एक्चुअली ऑटो इम्यून में आता है ना, यानी मैंने ऐसे गूगल में ये देखा तो, लेकिन अभी उनको उसके कोई सिम्टम्स नहीं है। तो लेकिन मुझे सिफिलिटिक उनमें से कुछ एक Yes, this case is psychosyphilitic. This case is psychosyphilitic, and you have to take the rubrics mostly syphilitic or psychosyphilitic. Yes. तो Yes, आपका नेट का प्रॉब्लम है शायद। हाँ 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 सर, सॉरी। हाँ, एम आई ऑडिबल सर? या हाँ, तो सर तो अभी उनको पॉलीमायोसाइटिस की कोई सिम्टम्स नहीं है। पीरियोडिसिटी एक मिला मुझे जो सिफिलिटिक सिम्टम आता है, तो और क्या लेना चाहिए या क्या कंसिडर करना चाहिए? आप मेंटल्स लो, जी मेंटल्स में देखो। दूसरा मोस्टली मेंटल्स के ही उसमें सिम्टम्स लेने पड़ेंगे, और जो फिजिकल जनरल्स में जो आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है वो आप डालो। हाँ जैसे कि पीरियोडिसिटी आपको मिला है वहां पे, तो इट इज वेल एंड गुड। ओके ओके सर। लेकिन मेंटल्स के निकालो सिफिलिटिक। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस नरेश जी बोलिए। सर डिसेंट्री जाके क्या वापस आना चाहिए? डिसेंट्री जाके कोल्ड, कोराइजा, राइनाइटिस। डायरिया नहीं आना चाहिए सर, कि डायरिया आना इसमें? डायरिया डिसेंट्री इट इज द सिम्टम ऑफ जीआईटी ना। जीआईटी जाने के बाद वो रेस्पिरेटरी में आना चाहिए, रेस्पिरेटरी के बाद स्किन पे आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। यस, एनीवन who would like to ask the questions or difficulties? Yes, Manisha. Yes ma'am, unmute करो कुछ। हेलो, Yes, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक डाउट है कि अभी जो ये अभी हम लोग जो लेयर्स ऑफ सप्रेशन जो कर रहे हैं ना, उसमें अभी कभी कभी मतलब हर एक का केस अगर क्योर हो रहा है तो उसमें वो जो लेयर्स है वो अकॉर्डिंग टू लेयर्स ही क्योर होना चाहिए, या कभी कभी क्योर होता है लेकिन हम लोग को ऐसे क्या बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ क्योर वगैरह मिलता नहीं है, तो व्हाट यू कैन से इन दोस केसेस?
इसीलिए तो मैंने बोला है कि आप इस चार्ट की प्रिंट करवा लो, उसे लैमिनेशन करके टेबल पे रखो, क्योंकि जहां कहाँ नहीं मिलेगा ये, जहां हिस्टेरिकल डिजीज का प्रोग्रेशन हुआ है। प्रोग्रेस हिस्टेरिकल था तो हिस्टेरिकली वो पीछे आएगा, या फिर जैसे कि 6 लेयर डिजीज है तो डायरेक्ट स्किन पे आ सकता है, बीच में के 2-3 लेयर उसमें से डायरेक्ट वो पास थ्रू होगा और स्किन पे आएगा। तो ऐसे केसेस में आपको लेयर बाय लेयर नहीं दिखेगा, लेकिन लेयर बाय लेयर बाकी डिजीजेस में, बाकी पेशेंट्स में दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो अगर मेडिसिन देने के बाद कुछ दिन तक, कुछ महीने तक अगर कोई सिम्टम नहीं आ रहा, ना लोअर इंपॉर्टेंट लेयर का आ रहा है और ना ही मोर इंपॉर्टेंट लेयर का आ रहा है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओनली गिव द एसएल एंड वेट वॉच। अगर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पेशेंट फीलिंग बेटर बट द सिम्टम्स आर नॉट कमिंग, देन अगेन वेट एंड वॉच, राइट। जब तक वो स्किन पे नहीं आता तब तक आप उसे क्योर्ड करके नहीं बोल सकते कि केस सॉल्व हो गई करके, क्योंकि अभी भी वो डायलेमा में है, कब क्या होगा पता नहीं, राइट। यस, तो सिम्टम्स लोअर लेयर के दिखने ही चाहिए इन द फॉलोअप्स, और जब तक वो स्किन पे नहीं आता है तब तक वो क्योर नहीं हुआ। और अगर सिम्टम्स आ ही नहीं रहे उसको लेस इंपॉर्टेंट सिस्टम में से, तो मे बी साइकोसिस होगा, सिफिलिटिक में से साइकोसिस में आया है, तो वेट एंड वॉच करो। कुछ दिन आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये जो फेज है वो लंबा भी चले। यस, थैंक यू सर। डाउट क्लियर? यस सर। दीपाली, यस, अगर आप आपके क्लिनिक में बैठे हैं, आपके घर में बैठे हैं, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस कंडीशन में हैं, जिस ड्रेस पे हैं, आप वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो एटलीस्ट मुझे आप लोगों के चेहरे एक बार देखने का मौका दीजिए कि कौन कौन है, कैसे दिखते हैं, कितने स्मार्ट है ना। Yes, thank you, ma'am. Yeah. So Dipali, हाँ सर, मेरा एक केस है सोरियासिस का। जी 1.5 years बैक उसको मैंने रेपेट्राइज करके एक मेडिसिन दिया था, वेनिला। वो वेनिला मेडिसिन मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन उसके बाद पेशेंट्स के सोरियाटिक इरप्शन सारे चले गए। आफ्टर 1.5 years शी सफर्ड फ्रॉम चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया उसने कुछ एलोपैथिक मेडिसिन या ऐसे कुछ लिया। एलोपैथिक मेडिसिन तो कुछ था नहीं उसके लिए, लेकिन रेस्ट एंड बाकी के सारे मल्टीविटामिन करके उसका 3-4 महीने तक जॉइंट पेन वगैरह चला। उसके बाद शी वाज बेटर, लेकिन 1.5 years के बाद अभी उसको सोरियासिस के इरप्शन वापस आ रहे हैं। फर्स्ट इरप्शन जो मैंने ट्रीट किया था, इट वाज एट द नेप ऑफ नेक। वो पूरी तरीके से चला गया, बैक ऑफ ईयर और नेप ऑफ नेक पे था। अभी जो इरप्शंस आ रहे हैं वो एल्बो और एंकल पे आ रहे हैं। सो अगर वैसा देखा जाए तो अबव डाउनवर्ड है, लेकिन इरप्शंस नई जगह पे है एंड इरप्शन पे इचिंग और क्रैक्स भी आ रहे हैं। अभी वो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो शुड आई इंक्रीज द पोटेंसी, शुड आई चेंज द मेडिसिन और वेट एंड वॉच? लास्ट डोज आपने कब दिया? लास्ट डोज मैंने 1 साल पहले दिया था। 1 साल पहले दिया था, हाँ। और Now चिकनगुनिया हुआ तभी भी मैंने रिपीट किया था, हम्म, लेकिन चिकनगुनिया के सिम्टम्स में उसको फर्क गिरने में 3-4 महीने लगे जॉइंट पेन जाने के लिए। लेकिन सेम पोटेंसी दिया था आपने नहीं, इंक्रीज किया था। चिकनगुनिया के ऊपर, सेम रेमेडी हाँ बट इंक्रीज से, पोटेंसी। हाँ हाँ हाँ। नाउ वही सेम जो पोटेंसी इंक्रीज किया था, वही सेम पोटेंसी आप अभी 1 डोज रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अबो डाउनवर्ड तो हो ही रहा है वो, और इतने दिन बाद आया है। तो इसमें एक काम ये भी हो सकता है कि आपको पहले उसके अभी के
कुछ मेंटल सिम्टम्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वो नोट डाउन करके रखिए कि ये इमोशंस के लिए ये पेशेंट सेंसिटिव है, तो आप उसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि ऐसे कुछ इमोशंस आएंगे तो हो सकता है कुछ सिम्टम्स वापस, कुछ इरप्शंस आपके स्किन पे आ जाए, इसलिए थोड़ा सा उस इमोशन से भी आपको हाँ, बचना वो पड़ेगा। इमोशंस मुझे फाइंड आउट हुआ है, जब भी उसको इरप्शंस या तकलीफ होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ फैमिली में कुछ हुआ है क्या। जी देन कोई तो भी एडमिट हुआ है, कोई तो भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यूजुअली शी कम्स विद इरप्शन। जी मैंने रिपीट करके भी उसके इरप्शंस अभी पूरी तरीके से जान ही रहे हैं, और अभी अच्छा। पोटेंसी बढ़ाने के लिए मार्केट में ऐसे वैनिला 1M 10M ऐसे कुछ अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेयर रेमेडी। सो ओके, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आगे। तो अभी आपने 1 साल से रिपीट नहीं किया है ना? जुलाई से रिपीट नहीं किया है मैंने, 6 हाँ, अभी। तो एक डोज आप रिपीट करके देखो ना, लेकिन अभी रिपीटेशन उसको कैसा दीजिए आप, Whatever. उसको हाँ डाइल्यूटेड डोज दो उसको। हम्म। 1 ग्लास ऑफ वाटर में 2 बूंद डाल के उसमें से 1 स्पून दीजिए आप, अच्छा, एकदम एंड लाइट। फॉर हाउ मेनी डेज शैल आई वेट कि उसकी वो कितना देने फर्क के पड़ता बाद है? एक 15 डेज आप वेट कीजिए, नहीं हुआ तो चेंज द मेडिसिन। नहीं हुआ तो चेंज द रेमेडी। ओके, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। यस, हेलो या सर, सेम केस मेरा भी है। एक पेशेंट है सोरियासिस की, और 8-9 महीने से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। काफी अच्छा रिस्पांस है सर। लैकेसिस दिया था हमने, तो मई जून में लगभग उसको इरप्शन जाने के बाद हीट प्रिकल आए जो है, घोवरियां हो गई हाथों पे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा उसके लेग लेफ्ट जहाँ एंकल है वहां पे, थाई में, लेफ्ट में, बैक में, उधर में एक इरप्शन आ गए सोरियासिस के। तो मैंने 2 महीने पहले लैकेसिस सीएम दिया एक डोज, 2 महीना पहले। तो अभी देख रहा हूँ, आज आई थी पेशेंट, देख रहा हूँ वो जो इस इरप्शन थे वो 70% चले गए जो है, लेकिन अभी 30% है। तो मेरा ये है सर कि जब उसको घमौरियां आ गए, हीट प्रिकल आया गर्मी में स्किन पे, तो पेशेंट को तो ठीक हो जाना चाहिए था, फिर सोरियासिस का 2 इरप्शन फिर से आया जो है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन हो गया। एक दिन आप बोल रहे थे कि राइट रेमेडी सिलेक्शन होने के बाद कभी कभी पूरी तरह से क्योर नहीं होता है, या पार्शियल सिलेक्शन होता है, तो हमको उसके ग्रुप में देखना चाहिए। हो सकता है राइट रेमेडी कुछ और हो, अभी हम पार्शियल सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेशेंट है ना, ये लैकेसिस की है, इसको इसका 2 भाई है, सिबलिंग है वो लोग, तो उससे बहुत हेट्रेट रहता है, बहुत नफरत रहता है। माँ उसको मानती है तो उसके लिए मारती है, छत पे ले जाती है, भगाती है, मारती है, वहां सोचती है धक्का दे दे मर जाए, लेकिन सोचती है धक्का दे दूंगी मर जाएगा तो लोग जान जाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत साथी रहे, उन लोगों के साथ जो गेम खेलती है उनको मारती है, फिर बोलेगी कि जब वो लोग मारने का नंबर आ जाएगा बोलेगी हाथ में डालेगी, बोलेगी नहीं खट्टी, मतलब अब की गेम नहीं खेलेगा ये, फिर हाथ जोड़ने लगेगी, फिर बोलेगी अरे मैं तुम्हारी दीदी हूं ना, तुम मेरा भाई हो ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब उन भाइयों को भगा भगा के मारती है, आड़े मारती है, मारना चाहती है, देखना नहीं चाहती। और सारे उसके रूबिक्स भी मिले थे इस तरह के, तो हमने दिया था, रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन सर 10 AM दिया था मैंने, उसके बाद बहुत सही था, हीट प्रिकल आया, फिर कहें उसके बाद फिर 2 इरप्शन आ गए उसको। अ, ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री बता दे रहे मैं पूरा मैं पूरा तकलीफ बता दे रहा हूँ सर। मुझे लगा कि ये मेरा पेशेंट ठीक, तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा था कि 6-7 महीने में मैंने सोरियासिस के ठीक कर दिया, तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था सोरियासिस को तो लेके। कैसा है कि जब उसे सिंपल इरप्शंस आए थे समर में, जी जी, तो हीट प्रिकल। यस, वो स्किन मतलब 4th लेयर से वो फर्स्ट लेयर के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर सिंपल इरप्शंस थे दैट वाज, सिंपल इरप्शन सर, श्योर। तो फिर हीट प्रिकल वो जो होता है वही मैंने फर्स्ट, अपने आप यस, से देखा। वो फर्स्ट लेयर पे आ चुका था। सोरियासिस फर्स्ट लेयर पे आ चुका था, 4th लेयर से, सॉरी 3rd लेयर डर्मिस से। जी तो यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट ने कोई गड़बड़ कर दी, कुछ ऑइंटमेंट लगाया होगा या फिर कुछ तभी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से वो वापस सप्रेस होके 3rd लेयर में चले गए।
अच्छा अच्छा। यस, तो इस मतलब कुछ भी अगर उसने अप्लाई किया है, बहुत बार क्या हो जाता है कि पेशेंट बोलता है नहीं हमने कुछ अप्लाई ही नहीं किया, लेकिन क्या हो जाता है कि बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट तो क्लियरली डिनाई कर देता है कि मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, आपकी इंस्ट्रक्शन टोटली फॉलो किए, लेकिन क्या हो जाता है कि पेशेंट ने खुद अप्लाई नहीं किया लेकिन दूसरे को लगा के दिया, है ना। बहुत से लेडीज बोलते हैं कि हम कभी भी झंडू बाम नहीं लगाते, लेकिन बच्चों को लगा के देंगे, हस्बैंड को लगा के देंगे। इट विल आल्सो कॉज द सेपरेशन, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो फर्स्ट लेयर से वापस थर्ड लेयर में चलेगा। योर रेमेडी वाज राइट, आप उसी रेमेडी से आगे जाओ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी समझ में नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में क्या करना, अगर आपको फ्रिक्वेंटली रेमेडीज रिपीट करनी पड़ रही है, पोटेंसी इंक्रीज करनी पड़ रही है, दैट मींस दैट रेमेडी इज नॉट अ करेक्ट परफेक्ट सिमिलिमम, इट इज पार्शियल सिमिलिमम, क्योंकि इतने फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन का काम नहीं पड़ना चाहिए और पोटेंसी इंक्रीज का भी काम नहीं पड़ना चाहिए। यस, तो सर मेरा ये फैसला सही है जो मैंने दिया लेगेसी सीएम? यस, अभी वेट एंड वॉच करो, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। हाँ, जो इरप्शन थे ना दोनों मैंने आज देखे हैं, वो लगभग 70% 60% वो इस्तेमाल हो गए हैं पहले से। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि मैंने अपने आंख से ही पिकल देखा था, मेरे समझ नहीं आता था, क्योंकि हमने उनको समझा के रखा था केवल आपको लगाना है तो नारियल तेल नहीं, कुछ नहीं लगाना है, साबुन भी नहीं जल्दी यूज करना है, तो वो लोग फॉलो कर रहे थे। फिर अचानक मेरे समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है। यस, थैंक यू वेरी मच, आज के सेशन के लिए बहुत अच्छा सवाल था आपका। आज हम बात करेंगे कि आज का मून इक्लिप्स है, राइट। तो जैसे कि न्यू मून, फुल मून फेजेस के इंपॉर्टेंस होम्योपैथी में दिए हैं, वैसा इक्लिप्स का कोई इंपॉर्टेंस है क्या होम्योपैथी में? कौन कौन लोग चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और मानते नहीं तो क्यों नहीं मानते? तो आप लोग हैंड राइज कीजिए, मैं आपको पूछूंगा कि कौन कौन मून इक्लिप्स जैसे आज का चंद्र ग्रहण है इस पे विश्वास करते हैं। कौन कौन विश्वास करता है कि चंद्रग्रहण तो होता है सर, विश्वास तो है ही, इसका कोई इफेक्ट बॉडी पे होता है कि नहीं होता है? कौन बिलीव करता है कि चंद्र ग्रहण में, जैसे हम न्यूज पे, टीवी पे, पेपर में सुनते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, यूरिन स्टूल को नहीं जाना चाहिए, वाह, ये राइट है कि रॉन्ग है? कौन बिलीव करता है, कौन नहीं करता है? यस, दिशा। सर आतापर्यंत तर एक नॅचरल प्रोसेस म्हणूनच मी फक्त बघत होते, पण ऍक्च्युली मी पर्सनली आता फील केलं 2 दिवसापूर्वी, ऍक्च्युली मला ऍक्ने प्रॉब्लेम आहे, तर एका फ्रेंड कडून रेमेडी विचारली मी तिला, तर त्यांनी मला ॲल्युमिनियाचा डोस दिला, मी तो घेतला 2 दिवसापूर्वी, म्हणजे काल परवालाच घेतला संध्याकाळी. तर आता ही मून फेजेस मध्ये ऍक्च्युली माझं माइंडसेट 2 दिवसापर्यंत ओके होता, पण आता काल संध्याकाळपासून मला खूप डिप्रेस्ड आणि सॅड फील होत आहे, जे नव्हतं बिफोर आफ्टर ॲल्युमिनिया. तर त्यांनी म्हटलं की मे बी आता मून फेजेस आहेत, त्यांनी असं होऊ शकतं. राइट, कारण पौर्णिमा पण आहे आणि चंद्रग्रहण पण आहे, बरोबर. तर हे पौर्णिमामुळे होऊ शकते, फुलमूनमुळे, परंतु आपला मेजर क्वेश्चन हा आहे की इक्लिप्सेसचं इम्पॉर्टन्स होमिओपॅथी मध्ये आहे का, आपण त्यावर बिलीव्ह करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे? होमिओपॅथी मध्ये इम्पॉर्टन्स म्हटलं तर सर बाकी काही रेमेडीज आहे, जसं की नायट्रोम्यूर झालं, हे सॉल्ट आणि वॉटर पासून बनलेलं आहे, जसं सी वॉटर वरती मूनचा इफेक्ट होतो. ते फुल मून आणि न्यू मून मध्ये चेंजेस होतात, इक्लिप्स इक्लिप्सेस मध्ये का? इक्लिप्स मध्ये तर नाही असं काही. यस, तर जे आपण ऐकतो की इक्लिप्स जेव्हा सुरू होते, जेव्हा वेद लागतात,
ते वेद लागेपर्यंत पासून तर ग्रहण संपेपर्यंत बाहेर पडायला नको. सर हिंदी में बताइए, हम लोगों को Yes. नहीं पता. जब से वो वेद उसके शुरू हो जाते हैं ग्रहण के, और वेद खत्म होने तक, ग्रहण खत्म होने तक बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब जो भी इसके साइंटिस्ट है, इसके जो भी जानकार हैं, वो बोलते हैं कि बाहर निकलना नहीं चाहिए, इस पीरियड में कुछ खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए. तो ये फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे क्या परिणाम होता है बॉडी पे? इक्लिप्सिस से क्या परिणाम होता है बॉडी पे? सर इसका रियली मेडिकली बॉडी पे कोई असर है या नहीं है? तो इस पे हम आज बात करेंगे. एक्चुअली इट इज राइट. और स्पेशली जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, उन पे इसका बहुत गहरा असर होता है. लेकिन सर एक छोटा सा बात बोलूंगा. मैंने न्यूज चैनल में देखा था सूर्य ग्रहण को. आज तो मैंने देखा नहीं सूर्य ग्रहण, एक दिन जब पहले इसके था तो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे थे. वो बोलते थे हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, उसका इफेक्ट नहीं आता है. प्रेग्नेंट और बाहर नहीं निकलना चाहिए, जानवर को भी बाहर ना निकालो, खाना ना खाओ. इस पे मैंने वैज्ञानिक तर्क वो लोग दे रहे थे, बहुत सारा वैज्ञानिक लोग बैठे थे. वो लोग बोल रहे थे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सब रूमर्स है, ऐसा कुछ होता नहीं. मैंने न्यूज में अपनी आंख से देखा जो है. तो अभी मेरे भैया जो है वो भी खाना नहीं खाए, दुकान बंद कर दिए, क्या है शॉप ऐसा समथिंग बोल रहे थे. तो मैं कहा कि क्या मानूं, वैज्ञानिक कुछ और बोल रहे हैं, धार्मिक गुरु कुछ और बताते हैं, पता नहीं क्या सही है. अपना जो शो है, अपना जो ये सेशन है, ये दूसरों के लिए नहीं है, अपने यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए है. इसलिए आपको क्या लगता है आपने आपका बताना चाहिए, लोगों का नहीं. किसने क्या बोला वो नहीं. आपको क्या लगा, आपको सही लगता है कि गलत लगता है, वो बताओ. असर तो होगा सर. हाँ. कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ही. यस. क्योंकि उसकी वजह ये है, उसका रीजन ये है कि मुझे ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग भविष्य पे विश्वास करते हैं? कितने लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में कुंडली दिखाई है, कुंडली निकाली है आपकी, है ना, भविष्य पूछा है, आप राशिफल देखते हो? देखते हैं कि नहीं? ये देखते. आप लोग कभी कोई काम करना है तो ज्योतिष के पास जाके, या फिर कोई आपके जो भी गुरु होंगे, गुरुजी होंगे, उनके पास से शुभ मुहूर्त निकाल के लाते हैं? आपने क्लिनिक ओपन किया तो शुभ मुहूर्त देखा ही होगा, राइट? कोई भी काम करते हैं तो शुभ मुहूर्त देखते हैं. अगर आपका इन बातों पे विश्वास नहीं है, ग्रहण पे, तो फिर आप शुभ मुहूर्त क्यों निकालते हैं? क्यों आप उस पे विश्वास करते हैं? अगर आप शुभ अशुभ मान रहे हैं, आपको पता है कि ये शुभ है, ये अशुभ है, तो ही आप उस पे विश्वास कर रहे हैं ना. तो ये भी तो एक ग्रहण है, तो ये भी तो शुभ हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, राइट? तो ये क्योंकि वी मेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, राइट? अगर ये 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, हर विश्व का हर जो भी लायु है वो उस इससे बना है. तो इसका मतलब उसमें चंद्र है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, अग्नि है. इन चीजों से ये 5 एलिमेंट से अपनी बॉडी बनी है. तो इन बातों पे, इन चीजों पे, ये 5 एलिमेंट्स पे इसका असर होता है. क्योंकि हम जब कुंडली निकालते हैं तो उसमें सब ग्रह आते हैं, है ना. हम जब हमारा जब बर्थ टाइम होता है, उस वक्त कौन सी ग्रह स्थिति थी ये हम देखते हैं, उस पर से वो पूरा निकालते हैं भविष्य, फ्यूचर, कि इसके लाइफ में क्या क्या होगा. क्या मतलब क्या है कि अपने ऊपर उन एलिमेंट्स का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और अगर हम उसमें से ही उसका ही पार्ट है तो अल्टीमेटली उसका असर हमारे बॉडी पे होगा ही, राइट? अगर मून फेजेस का असर अपने बॉडी पे होता है तो इसका भी असर होना ही चाहिए, और ये असर होता है, ये होम्योपैथी कहती है.
क्योंकि हैनेमन ने बहुत से अपने जो भी स्टॉलवर्ट हुए गए उन्होंने लिख के रखा है कि ये असर कैसे होता है, क्यों होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी, यस। तो देखो, नाइट्रिक एसिड, द विजन ग्रोज dim, object becomes dark, he cannot see anything and believe there is an eclipse of the sun or that he has become blind. इक्लिप्स का असर हुआ है, बॉडी पे असर होता है, यह हमारे मटेरिया मेडिका के बुक में लिखा है। Heparsal, anesthesia of retina from looking at the eclipse, cured by Heparsal. Therapeutic aspect में लिखा है, if at the time of diagnosis one of the four miasm which dominates the skin eclipses the three others, yes, the observer should not deduce from this that the genetic code of the other miasm has been definitely lost or annulled. एक रेमेडी इस पर से प्रूव की है, दैट इज द eclipse ray, solar eclipse ray. This is the remedy made by eclipse. फाइसोस्टिग्मा में हैनेमन ने लिख के रखा है, with sudden contraction of left pupil and sudden gloom as of an eclipse of the sun. These are the changes. और भी बहुत चेंजेस होंगे जो बॉडी पे होते हैं, इसीलिए हमें मानना ही चाहिए। अगर हमारा साइंस बोलता है तो इट इज राइट, वी बिलीव ऑन दैट, राइट। इस पे कुछ किसी को कहना है? दैट्स व्हाई जब ये होता है तो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स ने इसे फॉलो करना ही चाहिए, बच्चों ने इसे फॉलो करना है, क्योंकि बच्चों की सेंसिटिविटी हाई होती है, प्रेग्नेंट वुमन की सेंसिटिविटी हाई होती है। थोड़ा सा भी इमोशंस उस बच्चे को कॉज कर सकता है, टारगेट कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। इसलिए जितना पीरियड इक्लिप्सिस का होता है उसे फॉलो कीजिए। यस यस डॉक्टर कंसे। यस सर, अभी ये एक्लिप्स रेमेडी हाउ इट माइट हैव बीन मेड, और मतलब वेदर वी यूज इट, और हम लोग कभी यूज किए भी हैं, और वेदर ये रेयर मेडिसिन है, वेल प्रूव मेडिसिन नहीं है, ये मिलती कि नहीं हर सिटी में पता नहीं, लेकिन मेडिसिन है, प्रूव की है प्रोअर ने। ओके, हमारे मटेरिया मेडिका में इंक्लूड है। okay, does the patient comes with the eclipse ailment, and then that time present जो कंप्लेंट्स है उस पे ट्रीटमेंट देना है, या इफ एट ऑल समवन आर सफरिंग के फाइसोस्टिग्मा आप उसमें ले सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम इक्लिप्सेस। यस, तो जो रेमेडीज कवर करते हैं उसे हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो, पर्टिकुलरली एलिमेंट्स फ्रॉम इक्लिप्स। यस, सो थैंक यू वेरी मच। आज का टिप ऑफ द डे यही था। कल हम वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you very much. Thank you. Thank Thank you. Good night. And Thank you, sir. yeah. Good night, Good sir. night. Love you all. सब लोग इस चीज से बचिए। Thank you, sir.